راية غدا رجلا غير فرار وقرارا يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه صلوات بابا اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کے باؤ بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین گرامی صدر، مجلس اعضاء منعقد ہوئی ہے علم پاک کے لیے، اور میں نے قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں بلکہ قرآن مجید کی ہی آیت تلاوت کی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ نے کہا وہ وحی کے ذریعے کہا، جو کچھ وحی کے ذریعے کہا یہ رسول کی امانت داری تھی کہ کہا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، مگر نکلی ایک ہی دہن اتھر سے. اسی کو میں عنوان بنا کے گفتگو کرنے لگا ہوں میں، اور ماشاءاللہ سارے میرے جانے پہچانے، سارے میرے اپنے ہیں، اور میں زبردستی داد لینے کا قائل ہی نہیں ہوں. برسوں سے آپ مجھے سن رہے ہیں، بات میں نہیں کرنے لگا ہوں. رسول خدا نے کہا، پڑھتا یہ حدیث ہر کوئی ہے، لیکن ایک فکر کے تناظر سے آپ کو میں چاہوں گا کہ اس حدیث کو آج میرے ساتھ دیکھیں. آپ رسول خدا نے فرمایا، اور یہ بھی سارے ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ یہ حدیث نازل کہاں ہوئی. اللہ ہوگا، یہ نازل ہوئی خیبر میں، اور خیبر میں اس دن نازل ہوئی جب 39 دن بڑے بڑے بہادر جاگ کے واپس آتے رہے، اور یہودن عورتیں تالیاں بجا بجا کر کہتی رہیں، اگر تم میں کوئی مرد ہے تو اسے بھیجو. تو پھر رسول اکرم کی زبان سے وحی کی ترجمانی میں یہ جملے نکلے، لا اعطین رایت غدن رجلن، فرمایا میں نہیں دوں گا علم کل مگر مرد کو. بھائی دوں گا مرد کو، دوں گا کب؟ کل عطا کروں گا. اچھا ہوگا کون؟ کرارن، وہ بس بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا. جو عربی سے واقف ہے کرارا سے ہے، یہ کرار اسے کہتے ہیں جو حملہ کرے پھر اور حملہ کرے، یعنی حملہ کرتے کرتے دشمن کی صفوں میں گھس جائے، جو دشمن کو ڈرائے دشمن سے نہ ڈرے، اسے کہتے ہیں کرار. پھر کہا غیر فرارن، وہ فرار نہیں بلکہ فرار کا غیر ہے. اگر عربی دان ہوتے خدا کی قسم میں ایکسپلین کرتا اور وہ بھی جھومتے. یعنی غیر فرار ان کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا غیر فرار جیسے اللہ شرک کو نہیں جانتا وہ فرار کو نہیں جانتا. ایک شخص آیا تھا نا مولا کے پاس، کہتا مولا اللہ کیا نہیں جانتا؟ ایک بندے نے پوچھا ہے کچھ ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ یہودی ہیں، علم رکھنے والے تھے، سوال کرتے تھے، اور سوال کرے ہی یہودیوں نے. نے کہا بھئی اللہ کیا نہیں جانتا اور اللہ کیا نہیں دیکھتا؟ مسلمانوں نے تلوار نکال لی. نے کہا بھائی میں نے سوال کیا ہے، بدلے میں جواب دو، تلوار نہ نکالو. سلمان محمدی کھڑے تھے، ہاتھ پکڑ کے لے گئے. فرمایا یہ وہ جگہ نہیں جہاں سوال کیے جائیں اور جواب ملے، یہاں سوال کے بدلے تلوار ملتی ہے. میں تجھے وہ در دکھاؤں جہاں سوال کے بدلے جواب ملتا. آیا مولا کے پاس، مولا وہ کیا شے ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ فرمایا اللہ کے پاس ظلم نہیں. وہ کون ہے جسے اللہ نہیں جانتا؟ فرمایا اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا. فرمایا اور وہ کیا شے ہے جو اللہ نہیں دیکھتا؟ فرمایا اللہ خواب نہیں دیکھتا. کیونکہ اس نے اعلان کر دیا نا کہ نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، تو جو سوتا ہی نہیں اسے خواب کہاں سے آئے گا؟ اور پتہ لگا وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اچھا علم اس کو دوں گا، یحب اللہ و رسولہ،
जो अल्लाह से हुब करे और उसके रसूल से भी हुब करे, यानी अलम उसे मिलता है जो अल्लाह से भी हुब करे, उसके रसूल से भी हुब करे। तो रसूल की 1400 बरस पुरानी इस हदीस ने फैसला नहीं कर दिया, हक वही होगा जहां अलम होगा, और अलम होगा वहां। सलामत रहो, सलामत रहो। अल्लाह उन्हें किसी हकीर का मोहताज न करे, यानी अलम वहां होगा जो अल्लाह से भी हुब रखते होंगे और रसूल से भी हुब रखते होंगे। फिर फरमाया युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, और अलम उसे दूंगा जिसको अल्लाह भी हुब से देखता हो, रसूल भी उसे हुब से देखता हो। अल्लाहु अकबर। यहाँ अलम लगा है, इस बात का मुझे यकीन है अल्लाह भी तुम्हें हुब से देखता है, उसका रसूल भी तुम्हें हुब से देखता है। यफ्ताहुल्लाह अला यदैहि, और अल्लाह उसी के हाथों पर तुम्हें फतह नसीब करेगा। अल्लाहु अकबर। अलम मिला मेरे मौला अली को, मैं बात आगे बढ़ाने लगा। मेरे मौला अली को मिला अलम, और अली के बाद अलम उसको मिलेगा जो अली हो या अली जैसा हो। या जो अली हो, साहब भाई सैयद, जो अली हो या अली जैसा हो। करबला में अगर हुसैन की नजर में, मैं कहूं करबला में अगर मशीयत की नजर में कोई और अली होता तो उसे अलम मिलता, क्योंकि मशीयत की नजर में और हुसैन की नजर में अब्बास अली है, अली अब्बास है। अल्लाहु अकबर। मैं अपनी तरफ से तो बात करता नहीं, किताब खसाइसुल अब्बासिया और हदीस से है, जो इश्क की सबसे पहली तर्जुमान सैयदा फिजा से है। ऐसे ही जब सरकार तशरीफ लाए हैं, शहजादी जब मस्जिद में गई, अमीर कायनात आए और शहजादी ने जो सबसे पहला जुमला मुबारकबाद के बाद कहा, अगर तुमने दिलों पे लिखा तो फिर यहाँ नहीं अर्श पे अलम की जियारत करोगे। तो जुमला क्या था? शहजादी ने अली के कदमों पे बोसा दे के कहा, या अली और तो कुछ अब्बास को देख के मुझे नहीं सूझा, बस एक जुमला कहती हूँ, आज के बाद आईना देखने की जरूरत नहीं। आज के बाद आईना देखने की जरूरत नहीं, आज अब्बास आ गया, आज अली का आईना आ गया। तो फिर मैं जुमला कह दूं, तुम जो अब मेरे मौला अब्बास के नाम पे खुश हो रहे हो, मैंने क्या कहा था? अली के बाद अलम उसको मिलेगा जो अली जैसा हो या अली हो, और अलम को मानने वाले भी वही होंगे जो अली को माने, अली के बाद अली जैसे को। अली के बाद अलम की तारीख तो उनसे पूछो जो अलम को मानते हैं। अलम की तारीख आज की नहीं है, जिनके नुका अलम को देख के टूट जाते हो, उन्हें क्या पता अलम की तारीख क्या है। जनाब आदम के बाद सबसे पहले जिसे अलम मिला वो जनाब शीस थे, क्योंकि जनाब आदम की औलाद में पहले जनाब शीस ने शैतान के खिलाफ जंग की, तागूत के खिलाफ जंग की, आसमान से नाजिल हुआ। जिसका अलम नाजिल होता हो वो खुद तेरी तरह पैदा होते हो। और जो अलम को नहीं पूछते, जो अलम को सीधा नहीं करते, जो अलम से मुरादे नहीं मांगते, वो भटक के मर जाया करते हैं। आज नहीं, मुझे याद है मुजाहिद शाह साहब के यहाँ बारगाह में मैंने जुमला कहा था, सैयद जब हज पे जाते हैं, माशाल्लाह हज पे जाते होंगे आप, हज में कितना मजमा होता, बेहिसाब मजमा, ऐसा ही है ना। तो जो हज में सालार होते हैं, जो हज पर लेके जाने वाले होते हैं, वो एक बांस में किसी भी रंग का कपड़ा उठाकर बांध कर आगे चलते हैं और पीछे पीछे आवाम को चलाते हैं। एक मर्तबा किसी अलम का बुग़्ज़ रखने वाले ने
अपने बानी से पूछ लिया, भाई हमसे तो कहते हो अलम को न पूजो, आज हज के मौके पर खुद अलम उठा के चल रहा है। तो मैं जहालत न दिखा, यहाँ मजमा है, बहुत ज्यादा लोग हैं, अलम निशानी के तौर पे उठाया। अगर आज अभी अराफात के मैदान में अलम के पीछे न चले, गुमराह भटक के कर दिया कि मैदान अराफात हो या मैदान महशर, जो अलम को फॉलो नहीं करेगा भटक के मर जाए। इसका मतलब है अलम निशानी है। खुदा की कसम एक मर्तबा मैं क्या करूं, हदीसें आ रही है, मैं आपकी भाई साहिब भाई जो हदीस देखो भाई लिखिएगा, खुदा की कसम दिल पे जितने मेरे जानने वाले बैठे हो, मौला के पास बात आई, सरकार ये बताइए आपके मानने वाले, हम समझते हैं जो कुरैश से हों उनकी तो इज्जत है, लेकिन जो आपकी विलायत रखते हैं, हम देखते हैं उनके आबा व अजदाद कभी इज्जत के हामिल न थे, मगर वो आपकी विला के सबब से इज्जत के हामिल हो गए। उनके नसब कैसे हैं जो आपकी विला रखते हैं? खुदा की कसम मौला ने जुमला का, ये जुमला मैंने करबला में पढ़ा, सरकार अब्बास के हरम के सामने। जुमला क्या था? आपके लिए है और दुआ लूंगा आपसे जुमला कहने के बाद। उन्होंने फरमाया जो हमारी विलायत रखे, जो भी है हमारी विलायत रखे, उसका नसब इतना बुलंद है जैसे लश्कर में अलम बुलंद हो, जैसे लश्कर में अलम, उनका नसब इतना बुलंद है। तो ये सरकार के अलम की फजीलतें हैं। खुदा की कसम अर्श पर भी एक अलम नस्ब है, अर्श पर अलम नस्ब है। अब ये तो मंसूब हो गया, जो नालैन छू गई अब्बास के कदम को, अगर उसका मर्तबा बताऊं खुदा की कसम बंदे हैरान में दश्ते हैरानी में सरगर्दा होंगे। सलावत पढ़े मिलके बाबा। जब सरकार अबुल फजल के बात बात अपनी है, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, कम से कम 10 साल तो हो गए आपको मुझे देखते हुए पढ़ते हुए। सरकार अबुल फजल वाहिद वो हस्ती है, जब मैं इसके फजाइल पढ़ूं तो फिर मुझे वक्त की कोई वो नहीं रहती, और ना ही फिर मुझे अपनी फिक्र होती है कि मैं कितना पढ़ूं क्या पढ़ूं, क्योंकि सरकार हस्ती ही वो है। सरकार की हस्ती कौन है? अच्छा हमारे यहाँ हम क्या करें, एक तो आदत है इंसान की फितरत, दर्जा बंदियां बना दो, दर्जा बंदियां। सरकार आपने मुझे 7:30 बजे का मजलिस का बुलावा है और 7:30 बजे मैं छोड़ूंगा मजलिस, क्योंकि उन्होंने मुझे यकीन कीजिएगा अलम सामने, मुझे कोई आपसे वो नहीं, लेकिन वादा है मेरा 7:30 बजे मैं पढ़ूंगा। सैयद आएंगे इंशाल्लाह मेरे बाद पढ़े, मसाइब पढ़ेंगे, चलती रहेगी मेरी, आधा घंटा भी पढ़ लेंगे। और सैयद को मैं जानता हूँ अच्छी तरह, 1 घंटा भी पढ़ाओ सैयद पढ़ेंगे, सैयद को रखने वाली मजलिस नहीं है। मिलके सलावत पढ़े बाबा, मैं कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ दर्जा बंदियां बना दी जाती है। दर्जा बंदियां क्या बनाते हैं? फौरन कोई ज्यादा इल्म हासिल कर जाए ना, फौरन खारिश ये होती है कि मर्तबा, इसका मर्तबा इतना है, उसका मर्तबा इतना, इसका मर्तबा इतना, उसका मर्तबा इतना। सरकार अबुल फजल के हरम में कुछ तालिब इल्म बैठे, खसास अब्बासिया से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे जाओ, टाइप करो, सामने हर किताब आ जाती है, ठीक है। उसमें तालिब इल्म बैठे थे और वहाँ बहस शुरू हुई कि सलमान मोहम्मदी का रुतबा ज़्यादा है या सरकार का रुतबा ज़्यादा है। ये बहस होते होते, क्योंकि जो बात हक ना हो उसका कोई इख्तिताम तो होता ही नहीं, बहस होते होते तालिब इल्म जितने भी थे वो घरों को गए। घरों को जाने के बाद जो जोर दे रहा था सलमान मोहम्मदी के इल्म पर, उसे ख्वाब में नजर आया। क्या देखा? सरकार का हरम अथर है, हरम अथर में जाने लगा। हरम अथर में जहां दरबान खड़े होते हैं वहां सलमान खड़ा हुआ। जहां दरबान खड़े होते हैं, सलमान मोहम्मदी को वहां देखा। तालिब इल्म
देखा सलमान मोहम्मदी खड़े, आगे बढ़ के सलाम किया, सलमान मोहम्मदी ने मुंह फेर लिया। कैसे मुंह फेरा? कदमों पे गिर के कहता सरकार आप तो अली के, रसूल के बड़े मोतबर सहाबी हैं, ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज हैं, आपने मुझसे मुंह फेर लिया। अगर आपने मुंह फेर लिया, अली बादशाह ने कहा था आप जमीन पर अल्लाह का बाब हैं, अगर आपने मुंह फेरा तो अब ये हकीर जाए तो कहां जाए? फरमाया दीदा दरीदा दहनी संभाल के किया करो, जब इल्म आ जाए तो इल्म के मेंढक न बन जाया करो, मेंढक न बने करो, बल्कि मयारे मारिफत को बुलंद करो। मैं क्या जुबान चलाई थी तूने कल हरम मुताहर में बैठ के, मैं तो अबुल फजल को मुंह दिखाने के काबिल न रहा। मैं सरकार मैंने क्या कहा, आलम ख्वाब था, तो मैं कल तूने इस जुबान से नहीं कहा कि सलमान का इल्म ज्यादा है। आ मैं तुझे बताऊं सलमान का अब्बास से तकाबुल क्या है? फरमाया जब से दुनिया से गया मैंने पर्दा किया, जब से अबुल फजल की बारगाह में घुटने समेट कर बैठता हूं और अब्बास के इल्म के समंदर से रोजाना कतरे लेता हूं। सरकार के इल्म से मैं कतरे लेता हूं। कहां अबुल फजल, कहां सलमान का मर्तबा? ये 10वें ईमान के दर्जे पर वो कुल्ले ईमान जैसा, वो कुल्ले ईमान का टुकड़ा, ऐसा ही है, और ये 10वें ईमान के दर्जे पर। ऐसा सलमान मोहम्मदी वही नहीं, हुसैन अभी छोटा सिन है, आए हुसैन के पास, कहा या अबा अब्दुल्लाह, सर उठाया, क्या बात है? ए नाना के सहाबी, ए हुसैन आज अपनी कोई फजीलत सुनाओ। हुसैन ने कहने के लिए लब जोड़े, अली ने बिजली की तेजी के साथ आके लबों पर हाथ रखा और कहा हुसैन तुझे कसम है नाना के और बाबा के हक की एक जुमला भी ना कहना, सलमान हामिल नहीं है। सलमान का मर्तबा क्या है अबुल फजल के सामने? खुदा की कसम शहजादे की फजीलत इतनी है कि जब शब आशूर मेरे मौला खुतबे के लिए निकले हैं, और ये मैं जुमला बड़े शद्दोमत के साथ पढ़ा करता हूँ क्योंकि हम अब्बास के मानने वाले हैं, हमें किसी से क्या डर, क्या गम, क्या हम। हाँ, जब खुतबे के लिए निकले हैं, शहजादी ने जानबूझकर शहजादी से कहा कि मेरा मुसल्ला जरा खेमे के दरवाजे के करीब लगाओ, मैं अपने अब्बास की जियारत करूं। खुतबे के लिए सरकार ज़ीन पर हैं, शहजादी ने पर्दा हटाया, सरकार हुसैन को बुलाया, सरकार हुसैन को बुला के कहा या हुसैन, ए मेरे भाई हुसैन, क्या आपने देखा नहीं आज मेरा अब्बास हूबहू बाबा लग रहा, आज मेरा अब्बास हूबहू बाबा लग रहा। और शहजादी ने वहां ये जुमला कहा कि फरमाया कि मेरा अब्बास ज़ीन पर इस तरह था जैसे कोई बबर शेर दुश्मन के सामने जाता है। खुदा के आखिरी जुमले, बस आई पर मैं नहीं आना चाहता, लेकिन मजलिस में अगर किसी की आंख से आंसू निकल आए तो ये मजलिस की मकबूलियत की जमानत होती। जब सरकार अबुल फजल लश्कर के सामने आए, इधर 9 लाख का लश्कर, इधर अकेले अबुल फजल, और ये भी रसूल अल्लाह की जुबानी जुमले निकले। रसूल अल्लाह ने फरमाया था जब मेरे मौला को उहुद में दंदान मुबारक पर ज़र्ब लगी, टूटे नहीं थे। ये बात याद रखना, ये अकीदे के खिलाफ है कि दंदान मुबारक टूट गए। जो शायद टूट जाती है वो नक्स का बाइस, आले मोहम्मद में नक्स नहीं है। होठों पर तलवार लगी थी, लगते हुए मसूड़ों, पाकीज़ा मसूड़ों तक लगी, जख्म आया, लेकिन दंदान मुबारक नहीं टूटे। हाँ, नहीं टूटे। और ये भी अगर कोई साहिब मारिफत यहाँ हो बहस करे तो बहस करनी मुझे आता है, मैं उनको बताऊं कि अली की मौजूदगी में रसूल अल्लाह का जख्मी होना ये अकल से बाहर है। अल्लाह जाने क्या मशीयत थी, क्या बात थी जो ऐसा हुआ। तो जब अली गालिब आ गए तो सहाबा हैरान हुए, हैरान होकर पूछते या रसूल अल्लाह इतनी शदीद जंग थी, हम तो सारे भाग गए, अली सिर्फ आपके लिए अकेले खड़े रहे।
اور علی اکیلے رہ کر بھی غالب آئے. ایک مرتبہ رسول اللہ کے چہرے پر جلال آیا, فرمایا علی کیوں نہ غالب آئے؟ اگر کائنات بھی مل کے علی کے مقابل آئے, علی اکیلا غالب آئے گا. علی اکیلا علی غالب علی کل غالب. یہ میرے مولا کا لقب ہے. اور کیوں نہ غالب آئے؟ اللہ کا شیر ہے, رسول کا شیر ہے, کائنات کا امر علی کے ہاتھوں میں. خدا کی قسم, وہی ابو الفضل. کنوتیوں سے کنوتی جب ملی, کنوتیوں سے کنوتی میں گھوڑے کے کان دوسرے گھوڑے کے کان سے ملے, تو سرکار نے وہاں فرمایا اگر ہم چاہیں, توجہ رہے آخری جملہ ہے, اگر ہم چاہیں تو ابھی ابھی تمہیں تمہاری سواریوں سمیت تمہاری ماؤں کے شکموں میں واپس ڈال دو. بے شک بے شک بے شک. دھرتی کربلا کی تھی, منبر پہ میں کھڑا ہوں. یہ جملہ خطبا نے, پڑھنے والوں نے, قاسم زیدی سے پہلے کسی نے نہیں سوچا نہ کہا. یہ ان کی عطا ہے, میرا کوئی غرور نہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ سرکار میرا سوال ہے, آپ نے تو جملہ کہہ دیا, آج بھائی غور کیجیے گا, داد دوں گا. مائیں ہو سکتا ہے لشکر میں سے کسی کی زندہ ہی نہ ہو, قبر میں چلی گئی ہوں, سواریوں کی مائیں زندہ نہ ہوں, تو سرکار آپ نے تو کہہ دیا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں ابھی ابھی تمہاری ماؤں کے شکموں میں بھیج دیں. 9 لاکھ کمینے تھے, دشمن تھے حسین کے, اگر اختیار نہ ہوتا تو وہ بکواس کرتے, بھونکتے, دریدہ دہنی کرتے, لیکن ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہماری مائیں مر بھی گئی یہ زندہ کر کے واپس بھیجیں. زندہ کر کے واپس بھیجنے پر قادر ہے, کیونکہ اس کا بیٹا ہے جو موت بھی دیتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے, جو محی بھی ہے, جو ممیت بھی ہے, جو ہڈیوں کو زندہ کرنے والا. مولا ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں آپ جائیں نا, ذریعہ اقدس لگی ہے, ذریعہ اقدس پہ سلام ہے, اس پر سلام ہو جو اس کا بیٹا ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ جانے کیا مشیت تھی کہ وہی ابو الفضل عباس حسین سے کہنے نہیں اجازت مانگے, مولا مجھے لڑنے کی اجازت. پڑھنے والے پڑھتے ہیں الگ ڈھنگ سے, الگ ڈھب کے ساتھ. مولا کی مصائب میں ان جملہ لکھا ہے, کہتے جب ابو الفضل عباس ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہو کر, اس دور میں جو اسلحے تھے وہ میں گنوا دوں, تلوار ہوتی تھی, خنجر ہوتا تھا, تیر ہوتی تھی, کمان ہوتا تھا, نیزے, بھالے, اور ان کی بھی کئی قسمیں, سب کے سب ایک مطلب علی کے لال نے بدن پر سجائے اور سجا کر حسین کی بارگاہ میں آئے اجازت لینے کے لیے کہ سرکار مجھے اجازت ہے. اب جب حسین نے اس ڈھنگ میں دیکھا تو میرے مالک نے سوچا اگر ایسے چلا گیا تو کربلا کی داستان ویسے نہیں لکھی جائے گی جیسے حسین چاہتا ہے, پھر زینب شام نہیں جا سکتی اگر عباس اس طرح سے کربلا چلا گیا. ہونے والوں ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے عباس سے کہا, عباس شامیوں کو مارنا چاہتا, ان کی بے ادبیاں بہت بڑھ گئی. زینب کے خیمے کی طرف نگاہ کرتے, اللہ اکبر, مولا آپ کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. کہا عباس اگر شامیوں سے لڑنا ہے پھر تلوار ایک اور لے جا. میرے مولا عباس کی آنکھیں حیرت سے حسین کو دیکھ رہی. عباس تیر اور لے جا, کمان اور لے جا. جناب عباس کی حیرت کی انتہا نہ رہی, ابھی تو مجھے لڑنے سے منع کر رہا تھا, ابھی کہہ رہا ہے تیر تلواریں نیزے اور لے جا. میرے مولا نے سوالیہ نظروں سے حسین کی طرف دیکھا, کہا عباس بس اتنا یاد رکھنا کہ جتنی شامی تو کربلا میں مارے گا اتنے پتھر میری زینب کو شام میں. اللہ اکبر. یہ جملہ سرکار ابو الفضل عباس نے سنا. میں یوں کہتا ہوں شہزادی کی ردائے ناطق نے یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ سارے ہتھیار کھول کھول کے
हुसैन के कदमों में रख दिए। जब मश्क की बारी आई तो मश्क भी जब रखने लगे तो एक मर्तबा शहजादी करीब आई। शहजादी ने कहा चचा ये मश्क लेते जाओ, इस मश्क को जमीन पर न रखना। एक मर्तबा अब्बास झुके, सकीना ने मश्क पहनाई। एक मर्तबा जब जाने लगे हैं तो सरकार ने टूटा हुआ नेजा लिया। अलम मेरी बात की तस्दीक के लिए काफी है। टूटा हुआ नेजा लेकर जब अब्बास गए हैं तो शहजादी ज़ैनब ऐसे बिजली की तरह तेजी से हुसैन की तरफ आई, गले में बाहें डाल के कहा हुसैन मेरे अब्बास को जानबूझ के 9 लाख भेड़ियों के हवाले कर रहा हूं। कहा ज़ैनब बहन सब्र कर, अगर अब्बास चला गया तो फिर करबला की तारीख ऐसे नहीं चाहिए जैसे मशीयत में लिखी है। रोने वालों अब्बास गए, ज़ैनब मुसल्ले पर बैठ गई, हाथ दुआ के लिए बुलंद हो गए। लड़ते रहे अब्बास, खत्म कर दी मैंने मजलिस, लड़ते रहे अब्बास। अब्बास का एक बाजू कलम हुआ। शहजादी फिजा ने रो के कहा बीबी खबर खैर की हो, बाजू कलम हो गया। मेरी शहजादी ने संभल के कहा कोई बात नहीं, मेरा अब्बास है, एक बाजू सलामत है। रोने वाला दूसरा बाजू कलम हुआ। शहजादी ने फिर कहा आमद खैर की हो, दोनों बाजू कलम हो गए। एक मर्तबा शहजादी उठी, दामन झाड़ के कहा ऐ बीबियों अब हमारी रिदाओं का अल्लाह ही हाफ़िज़। जिन बाजुओं पर ज़ैनब को गरूर था अब वो बाजू न रहे। रोने वालों जालिम ने गुर्ज मारा, अली का लाल जमीन पे आया। रोने वालों जानते हो हर जुमले में ज़ैनब हुसैन की शरीक है। आखिरी जुमला जाग के सुन लेना, तुम्हारी दुआओं की छांव में रुखसत हूँ। हर जुमले में ज़ैनब शरीक है। सही जुमला मसाइब का अता हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, सादात और गैर सादात से दुआएं लूंगा। शहजादी हर काम में हुसैन की शरीक है। रोने वालों एक काम में अब्बास की भी शरीक है। अल्लाह जाने कितनी शराकतें होंगी मैं नहीं जानता, एक काम में शरीक जरूर है। मुझसे पूछो कौन सा? सरकार अबुल फजल ने जो अपने मसाइब खुद ख्वाब में आके जाकिरीन को बताए हैं, उसमें मेरे मौला ने एक जुमला कहा है। मेरे मौला कहते हैं ए पढ़ने वालों तुम अब्बास के मसाइब तो पढ़ते हो मगर मेरा वो मसाइब क्यों नहीं पढ़ते जब मैं जीन से जमीन पे जाकिर ने खाम में मुंह पीट के कहा मौला उस मसाइब में क्या ऐसी बात है? फरमाया तुमने गौर नहीं किया, हार गिरने वाला जब गिरा है उसने हाथों की टेक ली, जब मैं गिरा मेरे चेहरे करबला की रेत को छुआ। अज़ादारों इसी मामले में ज़ैनब अब्बास की शरीक है। जब 11 मुहर्रम को नाके पर सवार हुई, हुसैन का लाशा नजर आया, शहजादी ने नाके की सवारी छोड़ी, हाथ पसे गर्दन बंधे थे, रुखसार के बल शहजादी करबला की रेत में आई, फुरात की तरफ रुक करके कहा अब्बास तू जीन से जमीन पे आया, अरे तेरे बाजू नहीं थे मैं नाके से गिरी, तेरे बाजू पसे